See, as per our syllabus, commercial banking and customer banking, there we have seen introduction to commercial banking, then we have seen the structural changes in the Indian banking system, then the evolution of commercial banking. Now we supposed to see the functions of commercial bank. So under the functions of commercial bank, there are agency services also and general utility services also. That we will going to see it today, and we have done with the retail banking. Now the pending one is the corporate, rural, and the banking amusement. Okay. So as I told you, whichever notes are easier one, that we have to follow. So the for functions of commercial bank and its agency services and the general utility services, as I already told you, your 12th standard textbook is having very simple notes. So we will go into see that today, and even for the exam purpose, you people can refer those whatever the PDF has been pages has been sent by the Nidhi, वो सेम मैं आप लोगों के गूगल क्लासरूम में भी अटैच कर दूंगी, so that it will be easy for you to go through it. Okay, so let's go again with the functions of commercial bank. Now after your like when you are there in the second year, तुम लोग अभी 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करोगे. ओके, चलो. स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ रहेगा, रुको. व्हाट्सअप किधर है? Yes, now you can see it on the screen. Yes, student. Yes, ma'am. हाँ, ओके, चलो विल स्टार्ट हियर. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यहाँ पे भी लिखा है 45 to 48 इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है निधि ने. ओके, सी. Commercial bank perform diverse type of function. It satisfy the financial needs of the sector such as agriculture, industry, trade. Yes, that we have already seen into the commercial bank. Like they are acting as a retail banking also. They are providing the funds to the agriculture sector, industry, and the trade, even to the consumer customers. So it means what here? Overall development, economical growth and development के लिए with for the development of the different sector also, commercial banks are contributing in that. Okay, it plays a very significant role in the process of satisfying economic and social needs. The function performed by the banks are changing according to the change in time, and recently they are becoming customer centering and widening their function. Okay, yes, this is known to everyone. Nowadays commercial banking are coming out with the different scheme, different facilities for their customers. So therefore we are saying now it has become more customer centric here, and they are widening their function, like what kind of a facility they will going to provide to their customer. Okay, now the functions of commercial bank is being divided into two categories. First one is the primary and then the secondary. So first we'll start with the primary function. मतलब यहाँ पे जो जनरली एक बैंक को करना पड़ता है, एक कमर्शियल बैंक को उतना करना ही पड़ता है. तो वो उनका मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन इज बीन गिवन बाय द आरबीआई ओनली. सो एज अ बैंक दे हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन. सो दीज आर देयर प्राइमरी फंक्शन. तो सबसे पहले है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट. The most important activity of a commercial bank is to mobilize deposit from the public. मतलब पब्लिक से पैसा लेके आना है, उनसे वो डिपॉजिट लेके आना है. दैट इज व्हाट देयर मेन फंक्शन. People who have surplus income and the saving find it convenient to deposit the amount with the banks in a different type of deposit account which are as follows. मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं कि जैसे आके सेविंग अकाउंट में रख दिया करके, नहीं, पैसा जो है तुम्हारे पास अगर एक्सेस रहेगा कि अभी फिलहाल तुम लोग को पैसे की जरूरत नहीं है, मे बी थोड़े टाइम के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी. तो अगर वैसा कोई सिचुएशन रहेगा, देन हाउ दे विल गोइंग टू लाइक हाउ यू विल गोइंग टू इन्वेस्ट इट. तो उसके लिए भी अलग अलग बेनिफिशियल उन्होंने स्कीम बना के रखे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. तो पहला डिपॉजिट है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, और उसको कहा जाता है इवन द टर्म डिपॉजिट. ओके, so a fixed amount is deposited for a fixed period and it is called fixed deposit account. It is also known as term deposit. ये तुम्हारे घर में सब मतलब हर एक घर में ये होता ही रहेगा कि फिक्स डिपॉजिट करना है करके. मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं रहेगा कि जिन्होंने अभी तक कभी एफडी नहीं बनाया करके. हर कोई छोटे मोटे अमाउंट का ही सही, लेकिन इवन 10,000 भी रहेगा तो उसका भी हम लोग एफडी बना के रखते हैं. ओके, so this way with a small amount also we can do the FD, because everybody know like एक certain period तक आप वो पैसा रखोगे घर पे, वही 10,000 रहेगा तो खर्चा हो जाएगा. उससे बेटर है कि एक साल के लिए, 6 महीने के लिए उसका फिक्स डिपॉजिट में उसको डाल दो करके. ओके, the fixed period of a time
मे बी फ्रॉम 30 days to 5 years. एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, वेट. हाँ. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट दिख रहा है तुम लोगों को? चलिए थोड़ा जूम करूँ. नाउ इट इज ओके. Yes, ma'am. Yes, see here, the rate of interest on this account is the highest because the amount accepted is invested elsewhere for a long term by the bank. The depositor is given a fixed deposit receipt. If the if the deposit एक depositor is in the need of cash before the date of maturity, he can get a loan against the deposit also. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, ये अकाउंट मतलब ये जो फिक्स डिपॉजिट है, वाई इट इज सो फेमस, बिकॉज एक सर्टेन पीरियड तक आप वो पैसों का डिमांड नहीं करते हो, यू नो. तो वहाँ पे एक एश्योरिटी होता है बैंक को, दैट दैट दिस कस्टमर विल नॉट गोइंग, अगर उससे 5 सालों के लिए वो पैसा रखा है, तो वहाँ पे एक बैंक को एश्योरिटी आ जाता है कि 5 साल तक ये वाला जो पर्सन रहेगा, ही विल नॉट गोइंग टू डिमांड दैट मनी. So for the 5 years, bank will going to utilize your money and they will going to invest it in the invest into the somewhere. So वहाँ पे जिनको जैसे बैंक को अगर हाई रिटर्न मिलता है, तो वो वही पैसा किसी और जगह पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बदले में जैसे लाइक दे आर यूजिंग योर मनी, फॉर दैट रीजन दे विल बी गिविंग यू द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस. तो आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे ज़्यादा रहता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सपोज अगर आप लोग आपका एक डिपॉजिट है और आपको लोन की ज़रूरत है, तो नाउ एफडी के ऊपर भी आप लोन ले सकते हो करके. ओके, जो आपका एफडी है उसके अगेंस्ट भी आप वो लोन ले सकते हो. सो दिस इज व्हाट द फैसिलिटी इज बीन गिवन बाय द आरबीआई, सॉरी आरबीआई नहीं, कमर्शियल बैंक. तो व्हाट वी कैन से, आई रियली डोंट नो, ऐसा कभी प्रैक्टिकली हुआ है नहीं, लेकिन एक केस स्टडी में जानती हूँ इसके बारे में. किसी के पास बहुत बल्क अमाउंट रहता है कि चलो उनके पास ऑलमोस्ट 30 लाख है, 40 लाख है, ऐसा कुछ अमाउंट है उनके पास, उन्होंने वो 40 लाख का एफडी बना के रखा हुआ है उनके बैंक में. ठीक है, लेकिन बीच में ऐसा लगता है उनको कि नहीं चलो मुझे इस पैसों की ज़रूरत है, और मुझे शायद मुझे एक घर खरीदना है छोटा मोटा, सो दैट कुड बी कॉस्टिंग अराउंड 25 लाख. तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ये स्कीम के थ्रू, एफडी स्कीम के थ्रू, व्हाट दैट पर्सन कैन डू, उसका उसको उसका एफडी का पैसा भी खर्च नहीं करना है, और उसको और एडिशनल पैसा चाहिए, एंड फिर वो कैसे करेगा, तो व्हाट ही विल गोइंग टू डू कि जिस अकाउंट में उसने अपना एफडी रखा हुआ है, उसी बैंक में जाके वो वहाँ पे लो उसके अगेंस्ट लोन डिमांड करेगा, और जो भी लोन का अमाउंट रहेगा उसको ईएमआई के फॉर्म में, या फिर जो भी उसको एफडी के थ्रू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा इन द सेंस, अगर सपोज जो 25 लाख रुपीज ले रहा है, तो उसका जो ईएमआई पड़ने वाला है, तो वो अगर उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कवर अप हो रहा है, सो ही डोंट नीड टू पे एनीथिंग ओवर देयर. तो उसका ईएमआई चलता रहेगा, और जैसे उसके पास एडिशनल पैसा सेविंग होता रहेगा, एट दैट टाइम ही विल गोइंग टू रीपे दैट अमाउंट. तो ऐसा भी कर सकते हैं. सो आई मतलब इवन तुम्हारे घर पे अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा कि नहीं चलो अमाउंट अच्छा है और आप लोगों को और भी इन्वेस्ट करना है और कुछ खरीदना है, और एफडी का अमाउंट आपका अगर बड़ा रहेगा और वो आपको खर्चा नहीं करना है, सो दैट यू कैन आस्क योर बैंक कि ऐसा कोई स्कीम दे सकते हो क्या आप लोग. तो वो भी हो सकता है कि एफडी के अगेंस्ट तुम लोग लोन लेके अपना पूरा मतलब अमाउंट, एफडी वैसे के वैसे रहेगा, और आपको ईएमआई भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे आप मतलब, लेकिन ईएमआई का अमाउंट और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑलमोस्ट इक्वल ऐसा कुछ होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी. तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पैसा बचाने के लिए. ओके, नाउ द सेकंड वन हियर, सेविंग अकाउंट. सेकंड सेविंग अकाउंट तो सबका होता है. दिस अकाउंट एज द नेम सजेस्ट इज मेन फॉर द प्रमोशन ऑफ सेविंग. पर्सन हैविंग फिक्स्ड एंड द रेगुलर इनकम कैन deposit their saving in this account. A saving account holder is not permitted to have frequent withdrawals from this account as it is meant for saving. The interest on this account is credited to the account once in every 6 months. उन्होंने कहा कि फ्रिक्वेंट विड्रॉवल नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से तो सेविंग अकाउंट मतलब हम सबका रहता है, तो उसका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव वही है कि
सेव करना चाहिए, मतलब जो भी पैसा रहेगा। बट वेन एवर वी नीड मनी वी आर गोइंग टू द एटीएम एंड वी आर जस्ट लिटरली रिमूविंग दैट मनी। ठीक है, तो वैसा तो सेविंग अकाउंट भले वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन करते तो है लोग। और दूसरी बात है कि उसके ऊपर इवन इंटरेस्ट भी मिलता है तुम लोगों को वंस इन एवरी 6 मंथ। तो यस, ये मेरे उसका लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम अमाउंट का रहता है, बहुत कम चार्जेस देते हैं वो लोग उसके लिए। नाउ द नेक्स्ट वन है करंट अकाउंट। इन दिस अकाउंट, ये सबको पता रहेगा करंट अकाउंट क्या है। इन दिस अकाउंट अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट money any number of time and can withdraw it as and when it requires. In this account, generally business class deposit the money. Generally, the bank does not pay any interest on this deposit. If the total amount deposited is less than the minimum amount required, then the bank can charge some service charges. Money is withdrawn from this account by a check. A current account holder enjoys the overdraft facility. So this is a kind of current account. Basically, it has been taken by the businessman. तो ये बिजनेसमैन क्यों लेते हैं? बिकॉज दे आर एबल टू हैव द फैसिलिटी लाइक ओवरड्राफ्ट, कि अगर जो अमाउंट का मनी है उनके अकाउंट में, उससे ज़्यादा अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट अमाउंट ऑल्सो दे कैन टेक आउट। और लेकिन उसके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कुछ वहाँ पे मतलब सर्विस चार्जेस वहाँ पे लगाए जाते हैं। देन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग के लिए हम लोग बोलते हैं ना आरडी, तुम लोगों ने सुना रहेगा ना स्टूडेंट, आरडी निकालते हैं मम्मी, एफडी निकालते हैं। सुना है या नहीं ये वर्ड कभी, आरडी एफडी का? यस, यस और नो, Yes, ma'am. है ना? सो रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, आरडी का बताओ मुझे अपने टर्म में कैसे रहता है आरडी, मतलब क्या होता है घर पे, जिन लोगों के घर पे आरडी निकाला जाता है तो वहाँ पे क्या रहता है, कैसे आरडी में कैसे ट्रांजैक्शन होता है? हमें मंथली पे बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है, या फिर हमें मतलब एक ही टाइम पे पूरा फिक्स अमाउंट देना पड़ता है? बताओ। मंथली पे करना पड़ता हाँ, मंथली पे करना पड़ता है, लेकिन जो हम लोग मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हैं, वो जो अमाउंट रहेगा वो फ्लक्चुएटिंग रहता है या फिर नहीं, एक फिक्स अमाउंट हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि मंथली में इतना ही पैसा देगा करके? टेल मी। नहीं, फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लक्चुएटिंग रहता है? आई डोंट थिंक सो। फिक्स रहता है मैम। फिक्स फिक्स रहता है, रहता है। हाँ एक्चुअली इट यूज टू बी फिक्स। आरडी में थोड़ी हम लोग मतलब वहाँ पे कैसे रहता है कि आरडी जब हम लोग लेते हैं तो उस टाइम पे बताया जाता है कि मंथली में हजार हजार रुपया भरने वाला हूँ करके, सो मेरा इतने इतने सालों तक आरडी रहेगा। तो वो क्या रहता है कि आप एवरी मंथ पूरा एक साथ पैसा नहीं डालते हो, तो आप एवरी मंथ पे वहाँ पे पैसा जमा करोगे, लेकिन वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने अगर आरडी लिया है 2 साल के लिए, तो पूरा 2 साल एवरी मंथ यू हैव टू पे 1,000 रुपीज, एंड आफ्टर दैट 2 years दे विल गोइंग टू गिव यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका पैसा जमा हुआ है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा दिया जाता है। ओके, सो द अमाउंट विल बी फिक्स एंड इट विल बी पेड ऑन एवरी मंथ। और दूसरी बात रहती है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रहता है। यू कैन नॉट जस्ट से कि चलो ये महीना मैंने हजार हजार रुपया डाल दिया तो नेक्स्ट महीने में मैं नहीं डालूंगा, वैसे नहीं होता है। जो भी टाइम पीरियड तुम लोगों ने डिसाइड किया है वो टाइम के हिसाब से पैसा वहाँ पे जाना चाहिए, उसी टाइम पीरियड तक वहाँ पे रखना भी रहता है। नेक्स्ट ईयर वेट, नीचे नहीं जा रहा है। ऐसा था। नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज दैट? सी, it is a type of a saving bank account in which deposit in excess of a particular limit gets automatically transferred into the fixed deposit। अच्छा, ये वाला मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन ना मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट की एक सेविंग बैंक अकाउंट रहता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर अपने पास पैसा आ गया तो दैट वुड बी ट्रांसफर इनटू फिक्स डिपॉजिट। On the other hand, in case adequate fund is not available in our saving bank account so as to honor a check that we have issued, the required amount gets automatically transferred from fixed deposit to the saving bank account. The balance amount continues as a fixed deposit and earn interest as per existing rate of interest. One can earn higher rate of interest from a fixed deposit account than from the saving bank account. नहीं, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, और ये आई थिंक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस वन, कि ये ऐसा टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट है कि जिसके अंदर एक लिमिट रहता है, और लिमिट से ज़्यादा अगर पैसा हमारे पास है तो वो बैंक ऑटोमेटिकली उसको एफडी में डाल देती है। मतलब ये मैंने कभी नहीं सुना था।
बट तुम लोगों ने कभी इसके बारे में प्रैक्टिकली सुना है कि ऐसा हो गया है करके? उनका क्या लिमिट है? इवन आई नो रियली मैम। नो मैम। मैंने भी नहीं सुना ये, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही कि मल्टीपल ऑप्शन भी रहता है। पूछना पड़ेगा ये बेसिकली क्या, लेकिन उतना लिमिट वाला अमाउंट तो अपने पास होगा भी नहीं, उससे कम ही रहेगा। वो लोग क्या अपने एफडी में डालेंगे? उल्टा वो हम लोग को बोलेंगे भाई ले लो थोड़ा सा, बहुत कम पैसा है तुम्हारे अकाउंट में। ऐसा बोल दे तो बहुत अच्छी अच्छी बात हो जाएगी। बट स्टिल आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अकाउंट। लेकिन मैं करूंगी इसके बारे में इंक्वायरी कि ये क्या एग्जैक्टली रहता है। तो देखो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, उनका लिमिट भी कितना पहले हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा। सी इफ नाउ यू कैन सी इट ऑन द गूगल, थोड़ा देखो कितना लिमिट तक का उस मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में कितना लिमिट रहता है मिनिमम, उसके बाद में कौन से लिमिट के बाद में इट विल टर्न इनटू द फिक्स डिपॉजिट। अगर आप गूगल में सर्च कर सकते हो तो सर्च करके मुझे बताओ। उसके बाद में और एक क्या है कि अगर वहाँ पे एडिक्वेट फंड अवेलेबल नहीं है अपने सेविंग बैंक में, और हम लोग अपना चेक किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, देखो हमारे पास एक अमाउंट था तो सेविंग बैंक का लिमिट से ज़्यादा अगर पैसा चला गया तो वो हम लोगों ने बैंक ने उसको एफडी में ट्रांसफ़र कर दिया, और मैंने एक चेक बना के दिया किसी को, लेकिन वो चेक का जितना अमाउंट है वो मेरे सेविंग बैंक पे नहीं है। तो वहाँ पे बैंक क्या करेगा, वो आपका जो एफडी उसने बनाया हुआ है वो एफडी में से पैसा देके वो आपका चेक का, जो भी आपने किसी को चेक दिया रहेगा उसमें से वो बराबर से विड्रॉ कर लेगा। एंड देन अगेन द बैलेंस अमाउंट कंटिन्यू एज ए एफडी, वहाँ पे आपको एफडी के फॉर्म में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके, दिस वन इज अ गुड, लेकिन देखना चाहिए कि कितना अमाउंट एक्चुअली वहाँ पे वो लोग लिमिट कितना रखते हैं, वो पहले हम लोग को जानना चाहिए। ओके, तो ये हो गया अपना प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट वाला कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट का। उसके अंदर हम लोगों ने देखे 5 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, वन वाज द फिक्स, सेविंग, रिकरिंग, and then current, and then multiple option deposit account. Now the next one here, granting loans and advances। कुछ मिला गूगल पे, किसी ने सर्च किया क्या है करके, लिमिट कितना रहता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का? कुछ आ रहा है गूगल पे? यस, नहीं देखा तुम लोगों ने, ठीक है। देखो अगर टाइम में, हाँ यस अमन, हैव यू सीन दैट? अमन ने, हाँ अमन ने नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। मैं देख के बताऊंगी आपको क्या है करके, मुझे भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन ईयर, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस वो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी देखो किस किस फॉर्म में किस चीज़ों के लिए। A banker receive money through its deposit at lower rates. Out of this deposit, commercial bank grants loans and advances to the members of the public and to the business community at a higher rate of interest। देखो बैंक रिसीव करता है मनी थ्रू इज डिपॉजिट एट अ लोअर रेट, मतलब जो भी पैसा हम लोग रखते हैं तो उसके ऊपर एफडी में रखेंगे या फिर अपने आरडी में रखेंगे, तो उसके लिए बैंक हमें एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। लेकिन जब वही पैसा बैंक यूज करता है किसी को लोन देने के लिए, सो दे आर चार्जिंग द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो पहला है लोन। A loan is granted for a specific time period. The loans are particularly granted to the businessman and the members of the public against the personal security, gold and silver and other movable and the immovable asset। मतलब लोन ऐसे ही नहीं कि मैंने मांगा लोन और मुझे मिल गया, that way it will not going to work out। Here the bank will going to ask for certain security, like on what basis we should give you this amount of loan। तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी के लिए भी डिमांड करता है। तो आइदर तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगा, कुछ रहेगा, तो उसके अगेंस्ट आपका अगर कोई गोल्ड एंड सिल्वर रहेगा या फिर मूवेबल एंड इमूवेबल असेट रहेगा, तो वो आपको वहाँ पे गारंटी देना पड़ता है कि अगर मैं ये लोन रीपे नहीं कर पाया तो आप मेरा मतलब ये सिक्योरिटी, मतलब जो भी मेरा व्हाट वी कैन से पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आप ले सकते हो करके। सो दैट काइंड ऑफ अश्योरिटी दे आर टेकिंग। They generally commercial bank grants short-term loans, but term loans, that is loans for more than a year, may also be granted. The borrower may withdraw the entire amount in lump sum or in installment. However, interest is charged on the amount withdrawn or used। उन्होंने कहा है कि जनरली दे गिव लोन फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। इवन फॉर द मोर देन 15 ईयर्स के लिए भी कमर्शियल बैंक लोन्स देता है, ठीक है। और इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, इतना तो ध्यान में रखो। उसके बाद में है एडवांसेस। एन एडवांस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर। इट डिफर्स फ्रॉम लोन इन द सेंस दैट लोन्स में बी ग्रांटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड।
but advances are normally given for a short period of a time. The purpose of granting advances is to meet day-to-day requirement of a business. Interest is charged only on the amount withdrawn and not on the सैंक्शन अमाउंट, मतलब ऐसा क्रेडिट फैसिलिटी किया जाता है कि थोड़ा लोन से वो अलग रहेगा। मतलब लोन जनरली क्या होता है कि लॉन्गर पीरियड के लिए दिया जाता है, बट व्हेन विल टॉक अबाउट द एडवांसेस तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। और ये जो एडवांसेस है दे आर बेसिकली गिविंग इट टू द बिजनेसमैन ओनली, मतलब बिजनेसमैन का डे टू डे ट्रांजेक्शन में उनको अगर जितना छोटे छोटे अमाउंट का पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस के ऊपर उनको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, जितना पैसा वो लोग विड्रॉ करेंगे उतना वहाँ पे इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है। नेक्स्ट ईयर टाइप्स ऑफ एडवांसेस, तो कौन से टाइप ऑफ एडवांसेस है? फर्स्ट वन है कैश क्रेडिट। Under cash credit system, bank allows the borrower to draw amount up to a specific limit. A limit of a certain amount is sanctioned to the customer. The customer can withdraw this amount and as and when required. Interest is charged on the amount actually withdrawn. तो यहाँ पे कैश क्रेडिट जैसा फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन एक एक ध्यान में रखो एडवांसेस बस बिजनेसमैन को ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट मतलब अगर उनको जितना पैसे की जरूरत है उनको वो पैसा दिया जाएगा कस्टमर, मतलब बिजनेसमैन को उनके डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जब भी उनको जरूरत पड़ेगा तभी। लेकिन जितना पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। देन दो ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सबको पता है कि ये क्या रहता है, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है स्टूडेंट? यस, डू यू नो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ये करंट Yes, अकाउंट को दिया जाता है एंड देन अगेन भले ही तुम्हारे अकाउंट में पैसा कम रहेगा एंड यू नीड एक्सेस मनी तो आप वो एक्सेस मनी निकाल सकते हो, लेकिन वॉट एवर एक्सेस मनी यू हैव विदड्रॉन उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। देन द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस by discounting bills, that is making payment of the amount before the due date of the bills after deducting certain amount of discount. The party gets the funds without waiting for the date of the maturity of the bills. In case the bill is dishonored on the due date, the bank can recover the amount from the customer. Okay, who will explain me what is discounting of bills? इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? ये स्टूडेंट, ये किसको, ये कौन यूज करता है एंड देन कैसे यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है? अगर वो टाइम पे नहीं हो, बराबर ड्यू डेट पे अगर नहीं किया वहाँ पे तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है? हु विल एक्सप्लेन मी इन अ सिंपल लैंग्वेज? यस, व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कौन यूज करता है इसको, किस चीजों के लिए यूज किया जाता है? बताओ, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? Yes, student. What is bills of exchange? मैम हाँ मैम इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं हाँ, वेरी गुड। बिजनेसमैन। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो वहाँ पे ये डिस्काउंटिंग देना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता रहेगा यहाँ पे? मैम जैसे कि हमारे पास फुल पेमेंट करने के लिए मनी नहीं है, तो हाँ जिनसे हम मतलब गुड्स ले रहे हैं हाँ, वो हमें बिल बना के देते हैं वेरी कि गुड, आपको ये पेमेंट करना है। एंड फिर मैम अगर मतलब पेमेंट नहीं हो पाए, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम वो बिल जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं वेरी और गुड, बैंक से हम पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद बैंक जो है वो रिकवर कर लेती है, मतलब जो भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन उसके अंदर भी ड्यू डेट का मीनिंग क्या रहा? ड्यू, अगर वो ड्यू डेट पे कुछ नहीं, मतलब हाँ, उसका मीनिंग क्या है? ड्यू डेट पे नहीं पेमेंट किया तो क्या मतलब, ये सब क्या है? व्हाट इज मैम ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया इंडोर्स करते हैं मैम बिल तो चार्ज करता थर्ड है। पर्सन के थ्रू क्या करते हैं? डिसऑनर्ड होने के बाद। हाँ, डिसऑनर का मैम इफ अगर बिल जो, यस मैम, हाँ बोलो बोलो। बोलो आप। मैं बोलूँ? यस मैम, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट के, मतलब ड्यू डेट के बाद भी हम लोग वो जो भी है अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो बिल को इंडोर्स करते हैं। मतलब ऐसे ड्रॉव एंड ड्रॉवी एंड थर्ड पर्सन इंडोर्स ही होता है, जिससे जो थर्ड पर्सन होता है वो उसको ड्रॉवी को पैसे देता है। हाँ, तो सर्पस उसको ड्रॉवी को पैसे देता है, वेरी गुड। ठीक है, सो सिंपल टर्म में देखो आप लोगों ने बता दिया तो अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज, अच्छा सेकेंडरी फंक्शन में भी अभी तुम लोग ही मुझे बता दो सेकेंडरी में क्या क्या है, एजेंसी फंक्शन है करके। अभी व्हाट इज हैपनिंग इनटू द कलेक्शन ऑफ चेक, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इसके अंदर क्या होता है?
यहाँ पे कैसे बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट, वो कैसे होता है, मतलब आप कैसे बोलोगे कि वो एजेंट का जैसा काम करता है इन दिस पॉइंट? मैम कस्टमर के मतलब जो बैंक के कस्टमर होते हैं, मतलब जो कस्टमर है उनके बिहाफ पे वर्क करता है। हाँ, उनके बिहाफ में वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ चेक, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, मतलब ये क्या है, वो कैसे काम करेगा यहाँ पे एज एन एजेंट, क्या करेगा वो, बताओ। कलेक्शन ऑफ चेक के लिए आप कैसे बोलोगे मुझे कि मैम दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट, मतलब क्या होता है चेक के लिए, उन्होंने क्यों कहा है कि दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट, चेक में बेसिकली क्या होता है, बताओ। है ना, वी आर गिविंग देम सर्टेन ऑर्डर्स, चेक मतलब क्या, हम लोग उनको ऑर्डर देते हैं। जैसे अगर मैंने वहां पे एक चेक सबमिट किया, तो वो चेक किसी और बैंक का रहेगा और किसी ने मुझे वो दिया है, तो मैं वहां पे उनको ऑर्डर दे रही हूँ कि वो उस बैंक में से है ना पैसा निकाल के मेरे अकाउंट में डालो करके। आर यू गेटिंग मी? सो लाइक हमारे ऑर्डर पे हम जो भी वहां पे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो लोग काम करे, तो वो हमारे लिए काम करे। हम लोग को वो पर्टिकुलर बैंक पे जाना है, वहां से पैसा विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वो मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अभी मैं बैंक को वहां पे ऑर्डर दे रही हूँ कि है ना, वो जो सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है और मेरे पास चेक है बैंक ऑफ इंडिया का, तो मुझे किसी ने बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया दिया हुआ है मेरे नाम पे, तो मैं वहाँ पे क्या करूंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ बाय गिविंग देम द चेक कि बैंक ऑफ इंडिया से इतना इतना अमाउंट का पैसा निकाल के मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो करके। ओके, सो देयरफॉर इट मींस व्हाट हियर, दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट टू अस, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम लोग को वहां पे जाने की जरूरत है क्या बैंक ऑफ इंडिया में? कोई जरूरत नहीं। सो देयरफॉर कलेक्शन ऑफ चेक एंड देन अगेन like following the instruction, this is the kind of a agency function they are doing here. So they are basically doing all this kind of function on the behalf of his customer and credit the amount to their account, ठीक है। ये एक हो गया। देन पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें कैसे काम करता है बताओ मुझे, ये सब में कैसे काम करेगा बैंक एज एन एजेंट, व्हाट डू यू ऑल से? रेंट वगैरह देने में, रेंट का हमें पेमेंट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, तो उसके लिए क्यों उन्होंने कहा है कि बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट? हमारा काम वो कर रहा है, ऐसा हम लोग को वहां पे दिखाना है। हाँ? तो यहाँ पे आप लोग कैसे बोलोगे कि वो हमारा काम कर रहा है करके, बताओ। पेमेंट ऑफ रेंट, देन द इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक के थ्रू ही जाता है या नहीं? यस। यस मैम। Yes. यस मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट ऑफ रेंट मतलब हम लोग वहाँ पे ईसीएस करते हैं, मतलब हम लोग एक इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं बैंक को कि यह हर एक महीने में ये पर्टिकुलर डेट पे मेरा इतना इतना अमाउंट एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम जाना चाहिए, या फिर अगर मैं मुझे किसी को रेंट देना है तो मेरा ये पर्टिकुलर डेट पे हर एक महीने में इतना इतना अमाउंट का मेरा रेंट का पेमेंट होना चाहिए। सो बराबर उसके अकॉर्डिंग बैंक से आपका पैसा वो विड्रॉ होता रहेगा। अभी तक आप लोगों ने कभी किया नहीं रहेगा ये ईसीएस वगैरह, लेकिन आपके घर में तो लोग, आपके पेरेंट्स वगैरह करते ही रहेंगे, या फिर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन जो रहेंगे वो लोग ये करते ही रहेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि लाइक वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द बैंक कि ये पर्टिकुलर टाइम पे है ना, ये पर्टिकुलर इतने इतने सालों के लिए इतने इतने अमाउंट का ये पर्टिकुलर डेट पे एवरी मंथ में मेरा इतना इतना अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए करके। सो दैट वे वी आर गिविंग देम द इंस्ट्रक्शन, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रेंट कट करता रहता है, या फिर वो भले प्रीमियम रहेगा तो वो प्रीमियम कट करेगा, ईएमआई रहेगा तो ईएमआई कट करेगा। सो दिस वे, ठीक है। सो दे आर फॉलोइंग आर इंस्ट्रक्शन, इसके लिए वहां पे कहा गया है कि दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम। समझा स्टूडेंट आपको ये क्या है, क्यों वहां पे उन्होंने उसको एजेंसी फंक्शन में लिया है करके? एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम। यस मैम। हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सी एज एन एजेंट द कमर्शियल बैंक परचेसेस एंड सेल्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर कस्टमर एज पर आरबीआई एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। लेकिन ये सब करने के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए उस बैंक में, ये बताओ मुझे, अपने पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डील इनटू द फॉरेन एक्सचेंज। हु विल टेल मी? यस, कौन सा अकाउंट के थ्रू हम लोग वहाँ पे शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं, परचेज एंड सेल कर सकते हैं, बताओ। सी डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इवन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेम पॉइंट पे ही बोलो, कौन सा अकाउंट होना चाहिए?
करंट अकाउंट। नहीं ना, कौन सा अकाउंट रहता है? अगर तुम्हें शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। मैम डीमेट अकाउंट। यस, इट शुड बी डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो तुम लोगों को पहले वो बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और वो अकाउंट ओपन करने के बाद में आप लोग वहाँ पे शेयर्स का परचेज एंड सेल करते हैं। और परचेज एंड सेल मतलब अभी आप तो शेयर मार्केट में जा नहीं रहे हो, नहीं मुझे 10 रुपए का दे दो, मुझे 100 रुपए का दे दो। दैट वे यू आर नॉट डूइंग, यू आर स्टडिंग इट एंड देन यू आर परचेसिंग इट एंड देन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक की इतना मैंने उतना परचेज किया तो उतना अमाउंट डिडक्ट करो करके, तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। So that way it will going to happen here. So there also they are acting as an agent to us. Next, they act as a trustee, executor of will and then attorney. अभी इसके लिए आप लोग मुझे बताओ कि मतलब ट्रस्टी की जैसा वो हम लोगों के लिए काम करता है, क्यों हम लोगों ने उसको ट्रस्टी कहा है? क्या क्या मतलब वहाँ पे हम लोग ऐसा उनको उनके साथ करते हैं कि जो हम लिटरली वो हमारे लिए एक ट्रस्टी जैसा काम करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफ विल जैसा काम करता है? टेल मी हियर। यस, बताओ मुझे। कम ऑन टेल मी। ट्रस्टी, देखो ट्रस्टी का मैं यहाँ पे तुम लोग को क्या बोलना है कि आपको उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है। तुम लोग को नहीं दे, दूसरे को सुन लो। मरियम भी मुझे कुछ नहीं समझा, तो घर पे बात कर रही लगता है इससे। ओके, हियर दे आर एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव ऑफ विल एंड देन अगेन अटॉर्नी। मतलब वहाँ पे क्या रहता है कि जो भी आपका प्रॉपर्टी रहेगा वो हम लोग किसी और के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन रहेगा हम लोग वो घर पे रखना सेफ नहीं समझते हैं, तो उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, पूरा बैंक के पास रखते हैं। ऑल दैट ओके, जो भी अपना प्रॉपर्टी का डिटेल रहेगा, उसके बाद में जो हम लोगों ने विल वहाँ पे बनाया रहेगा, तो वो विल के थ्रू हम लोग घर पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपने बैंक के पास ही हम लोग रख देते हैं। सो लाइक सपोज समथिंग हैज हैपन टू अस, तो उसके बाद में हमारे बाद में बैंक भगवान विल को डिक्लेयर कर सकता है कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि उनके जाने के बाद में ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा करके, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट को सेफ रखना। तो हमारे लिए बेसिकली बैंक ही हम लोग उसको एक प्रिफर करते हैं कि जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को वो एकदम कॉन्फिडेंशियली रखने देता है करके। Okay, so therefore they are acting as a trustee to us also. Then again act as a correspondent. The commercial bank act as a correspondent of their customer. Small bank even get travel tickets, book vehicle, receive letter, etc. on behalf of their customer. Okay, therefore we are saying them they are acting as a correspondent. Then preparation of income tax return. They prepare income tax return and provide advice on tax matter for their customers also. For this purpose, they employ tax experts and make their services available to their customer. इवन अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए भी बैंक हमें गाइड करता है। ठीक है, उसके बारे में भी कि अगर हम लोगों को वो इनकम टैक्स रिटर्न में कितना हम लोग को टैक्स सेविंग करना चाहिए, किसके थ्रू हम लोग टैक्स सेविंग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स वो लेके आता है। वो हमें बोलते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो बेटर रहेगा। So this way they are guiding us and they are helping us in preparing the income tax return file. Wait. अच्छा, अभी भी बहुत सारा बाकी है। लेटर ऑफ क्रेडिट, one page is there and we are having very less time, so I think this point we will going to see it in the next lecture। क्या होता है बैंक ड्रॉप, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। अच्छा, डीमैट अकाउंट के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। देन द यूटिलिटी फंक्शन से अभी तक हम लोगों ने एजेंसी फंक्शन देखा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक हम लोगों ने देखा। प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन में उनका एजेंसी सर्विसेज आता है, यूटिलिटी सर्विसेज आता है। सो दैट वी हैव वी हैव सीन द एजेंसी सर्विसेज, but we have seen the half of the agency services and the remaining one we'll going to see it on the next lecture. Okay, okay student, you got your roll numbers? सबको रोल नंबर्स मिले? No, ma'am. No. अभी तक नहीं मिला।